નો એક્સપિરિયન્સ છે. હું મારા વિશે થોડું કહીશ કે હું યોગમાં જ્યારે હું એકદમ યંગ હતી, અરાઉન્ડ 5th સ્ટેન્ડર્ડ, ત્યારે મારા પેરેન્ટ્સે મને યોગનું ઇન્ટ્રોડક્શન કર્યું, બીકોઝ મારા ફાધર પહેલેથી યોગમાં બહુ જ એક્ટિવ હતા. અને મેં થોડું ઘણું કર્યું એ વખતે, પણ વેન આઈ ગોટ મેરીડ અને છોકરું આવ્યું, મારો સન આવ્યું, પછી મેં આઈ લેફ્ટ. અને પછી પાછું મેં થોડું રીસ્ટાર્ટ કર્યું છે ફ્યુ યર્સથી, પણ એ ઓન એન્ડ ઓફ રહ્યું છે. બટ સડનલી આ વખતે જાન્યુઆરીમાં આઈ થોટ કે આઈ નીડ ટુ ડુ સમથિંગ, કે મને બહુ જ, હું ઘરે પણ કરતી હતી લોકડાઉન પછી, તો મને મજા આવી રહી હતી. એટલે મેં કીધું કે મને એકચ્યુઅલીમાં થોડું સ્ટ્રક્ચરલ જો વેથી મને ખબર પડે તો ઇટ વુડ બી બેટર. અને મને લકુલિશ તો તમારું જે દિવસે સ્ટાર્ટ થવાનું હતું એના 2 દિવસ પહેલા જ આઈ કેમ ટુ નો થ્રુ માય મામી. માય મામી ઇઝ એન આયુર્વેદિક ડોક્ટર, વેરી રેનાઉન્ડ આયુર્વેદિક ડોક્ટર, અને 70 યર્સના છે. હસીબેન પાસાવાલા, એ આદર્શમાં અમદાવાદમાં. હસીબેન પાસાવાલા, હસીબેન. અને એમણે મને રેકમેન્ડ કર્યું કે તું લકુલિશમાંથી કર અને બીજે ક્યાંય ના જઈશ. અને પછી મેં અહીંયા જોઈન કર્યું. અને મને ખબર જ નહોતી કે મારું આ ટ્રાન્સફોર્મેશન આટલું, મારી જર્ની આવી રીતના સ્ટાર્ટ થશે. આઈ વોઝ નોટ નોઈંગ, મને બિલકુલ અવેરનેસ નહોતી. અને મેં ફર્સ્ટ લેક્ચર તમારું અટેન્ડ કર્યો અને મને ખબર પડી કે નો, ધેર ઇઝ સમથિંગ, મતલબ કોઈ એવી વસ્તુ છે, કોઈ સ્પાર્ક છે આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં કે માય લાઈફ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ચેન્જ. અને હું ઘરે છે ને એવરી ડે તમારો લેક્ચર થાય, કે જે પણ તું અહીંયા અમે લોકો ક્લાસીસ ને બધું છે પણ આસન્સ કરાવતા હતા, એમાં પણ હું એમ નથી કહેતી કે આસન મોનોટોનસ હતા. જેસલ મેમ અને દીપાલી મેમ કરાવતા હતા, એમાંથી પણ એવરી ડે નું અમને કંઈક ને કંઈક લર્નિંગ હતું. એ લર્નિંગ સટલ હતું. You have to understand between the lines, but reading between the lines I used to learn every day. And હું every day મારા ફેમિલી, મારા હસબન્ડ સાથે ઇવનિંગમાં used to share કે આજે મને ઇવન એમના એક્સપ્રેશન પરથી પણ હું કંઈ શીખતી હતી. અને એક્સપ્રેશન પણ હું મારા હસબન્ડને કહેતી હતી કે મને જેસલ મેમનું આ એક્સપ્રેશન લાગ્યું આ આસનમાં, અથવા તો એમને આ કોઈને પણ એમને સુધાર્યું હોય તો એમાં પણ હું એક there was a learning. જો અમે સમજીને તો એટલું બધું લર્નિંગ થયું છે ને કે આઈ કેનોટ ડિસ્ક્રાઇબ. અને પછી જર્ની ચાલતી ગઈ, તમારા લેક્ચર્સ અટેન્ડ કર્યા અને ધ એન્ટાયર ટીમને અમે ઓળખવા માંડ્યા. એઝ અ સ્ટુડન્ટ અમે ઓળખવા માંડ્યા તમને. અને પછી અમને, આઈ મીન બધાને સેમ જ એક્સપિરિયન્સ હશે, પણ મારો એક્સપિરિયન્સ બહુ ડીપ ગયો છે. અને આઈ હેવ એકચ્યુઅલી, આઈ વુડ સે કે આઈ હેવ અટેચ્ડ વિથ યુ ગાઈઝ. એ અટેચમેન્ટ આટલું દૂર રહીને પણ એ અટેચમેન્ટ થઈ ગયું છે તમારા લોકોથી. અને આ એપિસોડ ઓફ માય લાઈફ ઇઝ going to help me and my entire family. My son, સૌથી બહુ જ બેસ્ટ વસ્તુ કહું સર તમને, મારી સાથે થઈ. My son is in 10th standard now. અને એ મને રોજ જોતો હતો. એ બાજુના રૂમમાં એનું ઓનલાઈન સ્કૂલ ચાલે અને આ બાજુ હું કરતી હોઉં. તો એને મને આવીને, એને 12th પછી he wants to go out and study, એને બહાર જઈને ભણવું છે. તો એને મને આવીને કીધું કે મમ્મા મારી પાસે 2 years છે હવે, તો મને યોગ શીખવાડી દેજો, હું જઉં ને પહેલા. આઈ વોઝ થ્રિલ્ડ, કારણ કે એને ક્યારેય યોગમાં ઇન્ટરેસ્ટ બતાવ્યો જ નથી. કોઈ પણ, હું યોગ કરતી હતી પહેલા પણ એને ક્યારેય મને ઇન્ટરેસ્ટ બતાવ્યો નથી. પણ આ જોયું ને, આ જર્ની મારી, એના પછી એને મને કીધું મમ્મા હું જઉં ને તો યુ હેવ ટુ ગીવ મી ધીસ, તારે મને 2 વર્ષમાં યોગ શીખવાડવું છે. ને આઈ થિંક ફોર અ મધર આનાથી વધારે શું હોઈ શકે. સો થેન્ક યુ સો મચ ઓલ ઓફ યુ. અને હું તમને કાયમ યાદ કરીશ અને તમારા ટચમાં રહીશ. બટ તમે જે આપ્યું છે ને, કદાચ એ વર્ડ્સ આઈ થિંક ઇટ ઇઝ નોટ ધેર ઇન એની ડિક્શનરી. આઈ ટ્રાય ટુ એક્સપ્રેસ. એકવાર હું લખવા બેઠી, હું લખતી ગઈ ને 2 પેજીસ લખીને મેં તમને મોકલ્યા. બટ ઇટ ઇઝ બિયોન્ડ ધેટ. સો થેન્ક યુ જેસલ મેમ એન્ડ દીપાલી મેમ, થેન્ક યુ સો મચ. અને યુ ગાઈઝ આર, મતલબ આઈ વુડ cry right now. I don't want to speak more. Thank you, sir. Thank you so much. Anybody else? વાંધો નહીં, તમારા મનના ભાવ હોય, કઈ સજેશન હોય તો બી કહી શકશો તમે. બિંદાસ, નો પ્રોબ્લેમ. સર હું કહું? હા ચોક્કસ. સર મેં પહેલાં બી વાત કરેલી કે મેં 6 મહિના અહીંયા જોઈન કર્યા પહેલાં જ મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન લાઈફ યોગ ચાલુ કરેલું. અને ધ વે હેતલ કન્ડક્ટેડ ધ ક્લાસ, શી મેડ મી ફોલ ઇન લવ વિથ યોગ. અને મેં હેતલને પૂછ્યું કે આવું સેમ મારે થોડું ઇન ડેપ્થ શીખવું હોય તો ક્યાં શીખવાનું? તો એને કીધું લકુલેશ સિવાય કોઈ જગ્યા નથી જ્યાં તને આવું સેમ શીખવા મળશે.
એને કીધું આંખ બંધ કરીને તું જોઈન કરી લે. આઈ જસ્ટ ટ્રસ્ટેડ હર વર્ડ્સ અને આઈ જોઈન. અને અહીંયા આવ્યા પછી ધ ફિલિંગ ઇઝ અમેઝિંગ. એટલે નોટ જસ્ટ ધ ફિલિંગ દેટ આઈ ગેટ ઇન ધ બોડી બટ ઓલ્સો ઇન ધ માઇન્ડ. જેસલ મેમને ખબર છે કે મારું આ 2 monthsનું જર્ની થોડું ડિફિકલ્ટ હતું એન્ડ એટ વન પોઈન્ટ આઈ વોઝ અબાઉટ ટુ ગિવ અપ. બટ જે પ્રમાણે જે પ્રમાણે તમે કહેતા હતા કે પ્રાણ પ્રબલ થાય છે, એક્ઝેક્ટલી આઈ ફેલ દેટ ફિલિંગ અને આઈ કુડ કન્ટિન્યુ ધીસ કોર્સ. એવું બહુ બધી વાર થયું કે મારે હવે નથી કન્ટિન્યુ કરવું, પણ somehow I was able to do it. And I really thank the whole team of Lakulesh, જે આટલું મને મોટિવેટ કર્યું અને they kept helping me throughout. અને પછી મેં જેસલ મેમને કીધું કે પછી હું જાતે પ્રેક્ટિસ કરી શકીશ, તો એમને કીધું હા હા, અને તું જોજે તને એકલી પ્રેક્ટિસ કરવામાં બહુ મજા આવશે. આજે 1 અઠવાડિયું થઈ ગયું છે અને હું રોજ 2 કલાક પ્રેક્ટિસ કરું છું અને આઈ એમ રિયલી એન્જોયિંગ ઇટ. બહુ આનંદ. આઈ એમ રિયલી એન્જોયિંગ ઇટ. બસ, બસ. અને એકચ્યુઅલી મેં હેતલને કીધેલું કે હું આ લકુલેશ પતાયા પછી હું તને ફરીથી રીજોઈન કરીશ, પણ મને જે એકલું કરવામાં મજા આવે છે કે આઈ કેનોટ ડિસ્ક્રાઇબ દેટ ઇન વર્ડ્સ. અને સર તમારું એક લેક્ચર એટલું નોલેજેબલ હતું અને એટલું આમ સ્પાર્ક ક્રિએટ કરે છે બોડી અને માઇન્ડમાં. જ્યારે આસન કરવા બેસીએ કે કંઈક એકલા વિચાર કરતા હોય તો એ બધા વર્ડ્સ પાછા માઇન્ડમાં આવે કે ના ના આમ કરવું જોઈએ, આમ થાય, આનાથી આમ થાય. સો ઇટ હેઝ બીન લાઈક સ્વીટી સેટ ટ્રાન્સફોર્મેશન હતું અને વેરી ગુડ ચેન્જ. અને આઈ હોપ ટુ કીપ અપ ટુ ધીસ. અને જેસલ, આઈ કેનોટ થેન્ક ઇનફ ટુ જેસલ મેમ એન્ડ દીપાલી મેમ. They have done a wonderful job. અને as teachers, amazing. Thank you so much. સર એક વસ્તુ એડ કરવી હતી કે આપણા પાર્ટિસિપન્ટ્સ માટે તો કોઈ કંઈ બોલતું જ નથી, કારણ કે અમારી બેચના જેટલા પણ બપોરની બેચમાં જ્યારે મેમ થિયરી લેતા હતા ત્યારે અમે બધા જ સાથે હતા, પણ બેચમેટ્સ પણ એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી મળે છે, લાઇક માઇન્ડેડ પીપલ. અને એવરીબડી સો પોઝિટિવ. આટલા પોઝિટિવ એટીટ્યુડમાં મળવું, it's not easy, but somehow we all are lucky that way that participants are extraordinary. મને બહુ જ મજા આવી. ભલે મેં થોડું શેર કરતા હતા અને થોડું વાત કરતા હતા, બટ એક ફ્રેન્ડશિપ કાઇન્ડ ઓફ હેઝ ડેવલપ્ડ. અને અમે લોકો કેમેરા થ્રુ પણ થોડું એકબીજાને ઓળખતા થયા. બટ અમેઝિંગ એક્સપિરિયન્સ. સો મારી બેચમેટ્સ, થેન્ક યુ સો મચ એવરીવન. આઈ લવ્ડ યોર કંપની. પેલી બીજા ક્લાસમાંથી કોઈક, રૂબી મનાલીના ક્લાસમાંથી કોણ છે? કોઈ यस सर. હા, કોમલ કોણ છે? यस सर. हाँ कोमल. हाँ बोलो बेटा. अभी रूबी मैम को देखा, मनाली मैम को देखा और नेहा मैम आप सबको देखा, तो फिर बोलने के लिए कोई वर्ड्स नहीं था सर, क्योंकि अब हमारा छूट गया ना, आप लोग के साथ कांटेक्ट नहीं है हमारा. सबको देखकर ऐसा लगता है कि कम्प्लीटली हमारा लाइफ चेंज हो गया. बहुत अच्छा लग रहा है सर, सबके साथ हमारा ग्रुप है. रूबी मैम, सब मैम इतना पॉजिटिव थिंकिंग दे रहे थे, इतना सपोर्ट कर रहे थे सर. इतना थक जाती थी घर के काम से, बच्चों की वजह से, फिर रात को ना आंख में से पानी भी निकल आता था, फिर भी सो जाती थी क्योंकि मेरे घर में कोई है नहीं, मैं अकेली थी, 2 बच्चे और हस्बैंड फैमिली, और फिर कोई काम के लिए कोई सपोर्ट वाला था ही नहीं. फिर भी मैंने किया, लेकिन जब भी थोड़ा थक जाती ना तो मैम की बात, आप लोग की बात याद आती कि नहीं करना है. वो सबसे बड़ा एक पॉइंट, वो एक लाइन कि कभी गिव अप मत करना, छोड़ना नहीं है. कभी छोड़ा ही नहीं, ट्राई किया. और कुछ भी अगर ऐसा लाइफ में चेंजेस होता है ना, तो सब आप लोग की आंखों के सामने आते हैं कि आप लोगों ने जो दिया ना, बेस्ट दिया सर लाइफ में. शायद इतना माँ बाप से ना मिला हो, उतना आप लोगों से मिला है, सब मैम से, आपसे, सब लोगों से. और सब जो ग्रुप में है, हर एक फ्रेंड्स,
जिन लोगों से बात होती है, हर रोज हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं सर, वाकई में हमारा लाइफ चेंज है, हमारा माइंड चेंज है। बॉडी का तो छोड़ो, रिजल्ट का भी छोड़ो, लेकिन सर वाकई में बहुत अच्छा मिला है। थैंक यू सो मच सर, सबको थैंक यू। सर ऐसा है। सुनाई दे रहा? हेलो, सर सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ, सर कोमल सुनाई दे रहा है ना? हाँ सर सुनाई दे हाँ रहा हाँ है। हाँ हाँ, बोलो बोलो, हाँ सर बोलो मुझे बोलो। एक छोटी सी बात करनी थी। वो अभी जो स्वीटी हाँ ने बोलिए। कहा वो एग्जैक्टली मैं उसके साथ अग्री हूँ कि टीचर्स तो माइंड ब्लोइंग हमारे हैं ही सारे, थियरी हो प्रैक्टिकल हो और सब। आप तो सर लीजेंड है हमारे लिए। लेकिन नहीं सर नहीं, पार्टिसिपेंट्स जो हमें मिले हैं, एक जो ग्रुप बन गया है, ऐसा लगता था कि जैसे पूरी फैमिली है। और ये मैंने लास्ट वीक में फील किया, ज्यादा फील किया, जब मैं मतलब थोड़ी सी डाउन हो गई थी कि एग्जाम शायद दे पाऊं नहीं दे पाऊं, थोड़ा फिजिकल प्रॉब्लम हो गया था। और जो मुझे हेतल ने और स्वीटी ने जो मोटिवेट किया है मुझे, उसकी वजह से शायद टीचर्स ने तो किया ही था, लेकिन उन लोगों ने जिस तरह से मतलब लाइटली कि हो जाएगा डोंट वरी करो, मतलब ये जिस तरह से उन्होंने अप्रोच दिखाया, तो ऐसा लगा कि जैसे नहीं अब तो मैं कर सकती हूँ। सेल्फ मोटिवेशन तो होता है, लेकिन इस तरह से जो मोटिवेट करते हैं तो ऐसा लगा कि जैसे जैसे फैमिली मोटिवेट करती है वैसे वो लोग मोटिवेट करते थे कि नहीं भी तुम बहुत अच्छा कर रही हो, हमें पता है हम कैसा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मतलब एक प्रेज एवरी डे होता था कि भी तुमने ये अच्छा किया वो अच्छा किया, एक दूसरे का मतलब साथ देना। ये मैंने नोटिस किया है कि पॉजिटिवली सब बहुत रखते थे। ऐसा नॉर्मली कहा जाता है कि सब लेडीज होती है, नॉर्मली ऐसा बोला जाता है, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। बहुत ही मैच्योर और बहुत ही पॉजिटिवली सब एक दूसरे के साथ मतलब जुड़ गए हैं हम लोग, कि अभी भी लगता है कि हम हमेशा जुड़े रहेंगे। और दूसरा मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूं तो वो ये था कि पहले 1.5-2 महीने पहले की अगर मैं अपने आप को देखूं तो मुझे ऐसा लगता था कि सिचुएशन अगर मेरे अकॉर्डिंग नहीं होती थी, थोड़ी सी नेगेटिव होती थी या डिप्रेसिव होती थी, तो मैं बहुत ज्यादा मतलब एंग्री हो जाती थी, गुस्से में आ जाती थी, मतलब सब एंग्जाइटी सब एकदम से शुरू हो जाता था। अंदर ही अंदर मैं अपने आप को कोसती थी, गुस्सा करती थी आसपास के लोगों पे। लेकिन जैसे जैसे मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई और फिर मैंने ये सब सुनना और सोचना, मैंने खुद से कुछ नहीं किया, मैंने अपने आप से कुछ भी ट्राई नहीं किया, लेकिन वो अपने आप होता गया कि अब मेरा वे ऑफ थिंकिंग, जो सिचुएशन को देखने का एक नजरिया होता है, वो मेरा चेंज होने लगा है। कि भी किसी भी टेंशन वाली सिचुएशन को मैं सिंपली और कामली थोड़ा सा देखना मैंने शुरू किया है कि भी ये सिचुएशन है, ठीक है कोई बात नहीं, अभी मैंने ये अप्रोच लेना शुरू किया है। तो शायद ये सर आपने जो बताया था कि जब हमारा प्राण प्रबल प्रबल होता है तो ये ऐसे ऐसे हमारे अंदर जो चेंजेस आते हैं कि हमारे आसपास की चीजों को, लोगों को देखने का, उनको समझने का, वो एक नजरिया चेंज हुआ है। और दूसरी बात कि ये जो आजकल हमारी जो पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं अपनी डॉटर को आपकी आप जो बताते थे उसमें से कुछ-कुछ जो आप सब दृष्टांत वगैरह देते थे, आप थे, नेहा मैम थे, उनके पास तो दृष्टांत का खजाना रहता है। तो वो जब भी बोलते थे, वो मैं अपनी डॉटर को रात को सुनाती थी। हम दोनों का सेशन होता है रात को बात करने का, तो वो मैं उसको सुनाती थी। तो उसमें से उसका भी थोड़ा-सा नज़रिया हमारी संस्कृति के ऊपर, योग के लिए, वो थोड़ा-थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ है। वो अभी रेडी हो गई है और मेरी बात हो गई है जेसल मैम से, नेहा मैम से, मैं उसको लकुलिश की बिगिनर्स बैच में रखने वाली हूँ। वो एकदम से मतलब रेडी हो गई है, मुझे लगा शायद मना कर देगी, लेकिन अभी मेरी डॉटर भी इसके साथ जुड़ने के लिए रेडी है और मैं इसके लिए बहुत मतलब बहुत-बहुत ग्रेटफुल हूँ सर। हमारी लकुलिश यूनिवर्सिटी के लिए, आप सब टीचर्स के लिए, हमारा थिंकिंग, हमारा नज़रिया चेंज करने के लिए और हमारे अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ है, उसके लिए मैं आप लोगों की बहुत-बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू जेसल मैम, नेहा मैम,
आपके दृष्टांत तो मतलब मुझे हमेशा याद रहेंगे मैम। अभी अभी सोचते हैं ना, डकार भी आती है ना, तो ऐसा लगता है कि ये नाग वायु हमारा एक्टिवेट हो गया। अब जब बगा से आते यॉर्निंग होती है तो ऐसा लगता है कि क्रुगल वायु या देवदत्त वायु एक्टिवेट हो गया। मतलब ये एक लाइफ में अभी हमारा जुड़ गया है, पूरा हमारी लाइफ के लाइफस्टाइल में ये योग जैसे हमारा इंक्लूड हो गया है। तो ये बहुत अच्छा चेंज मैंने फील किया है। थैंक यू वेरी मच स्वीटीज, दीपाली मैम, नेहल जेसल मैम, हितेश्री मैम, ख्याति, स्वीटी, हेतल, सब सब थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सर आपको, आप लोगों को ये जो इंटरनल ब्लेसिंग मिल रहा है ना सर, वो जनरली ये ब्लेसिंग है हमारी तरफ से। वो कितना भी करते हैं ना हमारी लाइफ में तो ऐसे ब्लेसिंग्स नहीं मिलते, पर हमारा इंटरनल ब्लेसिंग आप लोगों को मिल रहा है ये। ऐसा है, सुनिए मेरी बात। ये मेरे गुरु को, मेरे गुरुदेव के गुरु ने, जब कृपालवानंद जी ने राजर्षि मुनि को दीक्षा दी थी, तभी बोला था, बेटा मैं तुझे अत्रि परंपरा के हिसाब से योग दीक्षा देता हूँ, योग रहस्य देता हूँ, तुझे शुभाशीर्वाद देता हूँ कि तू दिव्य शरीर को प्राप्त करेगा, डिवाइन बॉडी को। लेकिन साथ में एक बात बताता हूँ कि साधना के साथ संसार इतना दुखी है, इतना दुखी संसार है कि उसकी कुछ सेवा कर। हमारा प्रॉब्लम क्या हुआ है, हम दुख का इलाज भौतिक जगत में ढूंढने निकलते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल। ये बात बड़ी गंभीर कर रहा हूं। वो मड होता है ना, मड, मड में अगर आप फंस गए तो मड में से निकलने के लिए अगर ट्राई करोगे तो आप ज्यादा अंदर जाओगे। आज सिचुएशन ये आ गई है कि पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। कलाबेन एक चीज बोल के गए थे। कलाबेन इज सिटीजन ऑफ यूएस सिटीजन, शी इज डॉक्टर कलाबेन साहब। तो वो एक चीज बोल के गए थे, शी स्टेज मोस्ट ऑफ द टाइम इन यूएस। बोलता है उधर तो सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपकी समस्या का अंत भौतिक जगत में नहीं है। ये भारत के ऋषि मुनि ने बहुत अच्छी तरह से देख लिया। इन्होंने यही सोच के ये जो फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन दिया था। और ये फॉर्मेशन में ही आप उसी का ही प्रचार प्रसार करें, इससे बहुत लोगों की लाइफ बदल जाएगी। सब जब मैं ऐसे न्यूज पढ़ता हूँ, सुबह में एक बहुत इनोसेंट बेटी ने सुसाइड किया, मैंने आई हैव गॉन थ्रू इट, टच्ड मी लॉट। कहीं इसके पेरेंट्स की तो बात छोड़ो, लेकिन हमारी एज अ होल सोसाइटी इट इज ऑल्सो अवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहां भी जाओ, देखिए गुलाब होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर जगह पे ही स्मेल फैलाता है, जहां जाता है उधर स्मेल फैलाता है। उसको पिराना के बाजू में खड़ा करोगे ना तो उधर भी उतना स्मेल आता है। आप सीखे हो, दूसरे को रास्ता दिखाओगे ना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, इससे बड़ा कोई सेवा नहीं है। आप ट्राई कर लो। फिर से बताता हूँ, छोटी छोटी बेटियों को, टीनेजर्स को इतनी, और इसका कारण कहीं ना कहीं पेरेंट्स ही है, पेरेंट्स ही है, पेरेंट्स ही है, पेरेंट्स ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, don't impose your expectations on your children, indirectly or directly. I'm requesting all of you. Indirectly आप कैसे impose करते हो जानते हो? अरे वो है ना, चला एक नाम लोगे, इसकी बेटी JEE में फर्स्ट आ गई,
solid. Don't do this thing. मैं तो हमेशा मेरे घर में क्या बात करता हूँ पता है? वो फर्स्ट आया, देखो तेरा फ्रेंड फर्स्ट आया ना, लेकिन पूरा दिन खांसता रहता है, ऐसे इसका फर्स्ट का क्या मतलब? मेरे बेटे को ऑलवेज आई यूज्ड टू टेल दिस थिंग, आप ट्राई कर लो, नेवर इम्पोज एनीथिंग, एंड सभी को सूत्र से बांधता है स्नेह, प्रेम। आप देख लेना, आपकी आज के बाद आपकी भगवान लकुलिस से जुड़े हो, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा है कि आप सोसाइटी को अच्छी दिशा दिखाओगे। ऐसा नहीं है कि 25 को दिखाओ, एक एक को दिखाओ, क्योंकि आप एक कदम चलोगे तो आप जैसे करीब 25,000 लोग एक एक कदम चलेंगे, 25,000 कदम आगे बढ़ेंगे। आपको पता नहीं है छोटा सा सत्कर्म कितना बड़ा, छोटी सी चिंगारी पूरे ढेर को जला सकती है। इस तरह से है, मैं आपको बोल रहा हूं फिर से, आपकी ये विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरह से सिचुएशन बनी है, इसमें आप देख रहे हो जो रिलेशनशिप का इश्यूज आ रहे हैं, प्रोफेशनल प्रेशर है बच्चों के ऊपर, बहुत बड़ा प्रेशर है प्रोफेशनल लाइफ में, कुछ अचीव करने का प्रेशर है। इसमें बैलेंसिंग कैसे कराना है वो आपको सिखाना है। निश्चित करिए, क्योंकि हर चीज आप समझ लेना, समाज में घटित होने वाली हर चीज का रिफ्लेक्शन आपके ऊपर आएगा। यू आर नॉट आइसोलेटेड केस, नेवर थिंक यू आर आइसोलेटेड, नेवर एवर। मैं हमेशा कहता हूँ, हम जब स्कूल में थे तो एक वो एक दूसरे को हाथ पकड़ के राउंड में ऐसे राउंड लगाते थे, छोटे थे। इसमें किसी कोई भी आदमी अगर हरकत करता था तो पूरे राउंड के ऊपर इसका इफेक्ट होता, पूरे सर्कल। आप यू आर इन अ सर्किट, इन व्हाट वे, इसका साइंस बताता हूँ। देखिए, सबसे बड़ा नाता भारत के ऋषियों ने ढूंढ निकाला था, प्राण का नाता था। आप यहाँ जुड़ते क्यों हो? क्योंकि ये प्राणोपासना है। जब आपका प्राण सर्किट में आता है और किसी से वही सर्किट में जब बैठ जाते हो, तो आप सहानुभूति नहीं, आप उनका दर्द महसूस करने लगते हो। वही चीज होती है जब आप सर्किट में होता है, जो प्राण की सर्किट है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पढ़े हुए हैं इनको पता है, जब इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में बहती है तो होता क्या है कि अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया तो पूरी सर्किट बंद हो जाती है, क्योंकि प्रवाह उधर अटक जाता है। सोसाइटी में घटित होने वाली हर कोई घटना, नेवर थिंक कि यू आर आइसोलेटेड। इसकी हम सबकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी निभाने में ऐसा नहीं है कि जिम्मेवारी तो क्या चीज होती है पता है? एक छोटी चीज भी करो ना तो दैट इज इनफ। ऐसा नहीं है कि हमको बहुत ज्यादा बड़ी चीज करनी है, ये चीज करना। मनुष्य के अंदर इतनी बड़ी ताकत दी है ईश्वर ने, इतनी बड़ी ताकत दी है कि तारे जमीन पे ला सकता है। इसका सबसे बड़ा एक मैं आपको, आप देखिए, 1 साल से पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है। इतनी बड़ी आफत है ये, फिर भी कोई ना कोई रास्ता मनुष्य ढूंढ लेता है, कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ लिया है सबने। पूरा फैमिली संक्रमित है तो भी रास्ता ढूंढ निकाला है, क्योंकि
मनुष्य के पास अमाप संभावना है, अमाप संभावना। ये हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, मनुष्य ईश्वर की प्रतिकृति है। एंड ours is the most, we are the most responsible person. हमें भी हमारी जिम्मेवारी निभानी होगी। जिस बिल्डिंग में हो, जिस फैमिली में हो, उससे लोगों से मिलिए, प्रेम करिए। इनको योग न कर पाए तो कुछ नहीं, लेकिन आपकी वजह से सुबह में वॉकिंग करने तो चले ही जाने चाहिए। इतना तो कर ही लेना। मैं तो जहां जहां गया हूँ, काफी शहरों में गया हुआ हूँ मैं, उधर उधर मैंने ये काम किया है। मेरे साथ कोई भी आता है और इस तरह से मैं ऑपरेशन एनेस्थेसिया में करता हूँ कि इसको पता भी नहीं रहता है कि ये ऑपरेशन हो गया है। You'll have to do ऑपरेशन इन एनेस्थेसिया में हमेशा बोला है। मैं अहमदाबाद से मेरा कोई नाता नहीं था, 2 मिनट का ये बात है। कभी 90s, वी आर फ्रॉम साउथ गुजरात, हम लोग यहाँ से नहीं हैं, बेसिकली नॉट फ्रॉम अहमदाबाद, हम लोग सूरत की और बाजू से। तो हमारे लिए 90 2 ही ऑप्शन रहते। छोटा गांव था हमारा सूरत के बारे में, या तो बंबई जाओ या तो अमेरिका जाओ, 2 ही रास्ता रहता था। अहमदाबाद तो कभी सोचने का ही नहीं हुआ था। फिर बड़ौदा से जब यहाँ पे जॉब लगा तो मुझे एक अजब सा हुआ, क्यों यहाँ पे लाया ऐसे, मतलब इतनी ड्राई प्लेस, इतनी गर्मी, इतना क्लेमेंट एटमोस्फियर। ना तो मुझे सिटी का कुछ पता है, 92 में पहली बार आया था मैं यहाँ पे, कुछ भी पता नहीं था मुझे। अभी मुझे पता नहीं था कि मेरे गुरु का डिवाइन प्लान था कि मैं इस यूनिवर्सिटी से जुड़ूं। जब ये आगे पता चला, तभी मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं मेरा अनुबंध इस यूनिवर्सिटी से है, इसलिए ईश्वर मुझे यहाँ खींच के लेके आया था। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप भी वो डिवाइन प्लान के एक भाग हो। आज से स्टार्ट इट, डू प्रैक्टिस, अलाउ सुगंध, और आगे बढ़ो। वी आर देयर, हमारे सब टीचर्स आपके साथ है। कभी भी कोई प्रॉब्लम है आ जाना। आकाश जी, आपको कुछ कहना है तो बता दीजिए। मुझसे बोल रहे हैं सर? आवाज आ रहा है मेरा? हाँ जी, हाँ आवाज आ रही। ओके। हाँ सर, तो ये लास्ट 45 डेज का एक्सपीरियंस था मेरा, वो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव था, स्टार्ट से ही एक्चुअली। और फनी थिंग बोले या फिर इंटरेस्टिंग चीज जो भी, लाइक स्टार्ट टू एंड जो लोग भी इन्वॉल्व थे, मोस्ट ऑफ देम वेर फीमेल ओनली, व्हिच वाज आल्सो सरप्राइजिंग फॉर मी। क्योंकि जो एक आउटलुक मेरे दिमाग में था पहले से, लाइक योगा है, तो मुझे पता नहीं था कि इतना ज्यादा लाइक फीमेल इन्वॉल्व है इसमें, एंड दे आर सो गुड एट इट। मतलब आई मीन, क्योंकि एक जनरल आउटलुक रहता है, फोटो देखते हैं, बुक्स देखते हैं, या फिर इधर रामदेव बाबा बता रहे, या फिर रविशंकर मेडिटेशन के बारे में बता रहे, तो कहीं पे आई हैव नेवर सीन some female who has excelled so much far in this field. But the interesting thing is कि जो एरिया ऑक्यूपाइड है वो फीमेल से ज्यादा है देन मेल। आई मीन दे आर मच मोर डोमिनेंट इन दिस फील्ड देन द मेल काउंटरपार्ट। तो स्टार्टिंग में भी जब मैंने ज्वाइन किया था, तो उस समय इट वाजंट लाइक कि मैं बहुत एकदम 100% इंटरेस्ट के साथ मैंने किया नहीं था। इट वाज जस्ट दैट कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, आई वाज क्यूरियस कि ठीक है करते हैं। However, मंगी ने पुश किया तो फिर ज्वाइन कर लिया मैंने। एंड ज्वाइन करने के पहले तक जो मेरे दिमाग में योगा का कंसेप्शन था, इट वाज जस्ट अबाउट कि इसमें कुछ एकदम डिफिकल्ट चीज करना रहता है, हाथ पांव इधर से घुमा करके ऐसे ऐसे कुछ एकदम, या फिर रामदेव बाबा जैसे पेट नचाते रहते हैं। तो वो सब चीज है, दैट इज वो मेरे बस की बात है नहीं। बट फिर भी देखते क्या है, ऐसे भी एक्सरसाइज हो जाएगा, चलेगा। बट
पढ़ते पढ़ते यहाँ पे समझ में आया कि वो एक्सरसाइजेस आसन जो दैट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, और जो एक्चुअल में जो बेनिफिट्स ये रीप करता है दैट गोज बियॉन्ड दोज फिजिकल लिमिटेशंस। सो ये मुझे आइडिया नहीं था, एंड आई स्टार्टेड बिलीविंग इन दिस थिंग, क्योंकि एक्चुअली में आई हैव सीन कि उतना चेंज मेरे में आया है, एंड द वे आई रिस्पॉन्ड टू थिंग्स नाउ, पहले भी कामली रिस्पॉन्ड कर रहा था, बट अभी क्या है कि क्लैरिटी के साथ सेम चीज मैं बोल पाता हूँ। आई एम मच मोर कॉन्फिडेंट व्हेन आई एम जस्टिफाइंग समथिंग, या फिर किसी ने मेरे से कुछ पूछा ये और जीवन कैसा चल रहा है, हाउ इज लाइफ एंड ऑल, तो एक रहता है वेग आंसर देना, मस्त है ऐसा वैसा। नाउ इट्स लाइक इवन इफ आई एम सेइंग दैट आई नो क्लियरली व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय लाइफ, व्हाई आई एम गिविंग दैट आंसर टू दैट पर्सन, एंड क्या चल रहा है, मतलब एकदम प्रॉपर क्लैरिटी रहता है उस चीज के बारे में। और फिर इवन इन दिस रिगार्ड लाइक घर पे जो रिएक्शन था पेरेंट्स का, मम्मी पापा का, वो भी बहुत अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज दिस वाज द लास्ट थिंग दैट दे एक्सपेक्टेड कि मेरा जो डेली रूटीन है वो इतना ड्रास्टिक वे में चेंज हो जाएगा कि मैं सुबह 8 बजे उठ रहा हूँ तो मतलब उठ रहा हूँ। तो अभी भी उनसे बात करता हूँ तो उनसे ये सब तो डिस्कस नहीं करता कि ऐसा होता है, योग करना चाहिए एंड ऑल दोस थिंग्स। आई ट्राई टू मोटिवेट देम कि अभी मैं आऊंगा घर पे तो आई विल टीच यू गाइस आल्सो, और मेंटली प्रिपेयर्ड रहने के लिए वैसा। बट उनका रिएक्शन यही रहता है कि चलो कुछ हुआ या नहीं हुआ, बट तुम्हारा खाने का टाइम और रूटीन सीधा हो गया है, वो हम लोग से नहीं हो पा रहा था इतने साल से, इट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर अस। तो वो तो एकदम सीधा सीधा इफेक्ट दिखता है इसका यहाँ पर जो हुआ है। एंड इवन और भी मतलब एक ये था लाइक ये जो हमारा जो मिथोलॉजी है, हिंदू मिथोलॉजी है और जो सनातन धर्म है, अभी से पहले क्या था, आई हैड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज थिंग्स, बट जो एक फर्म बिलीफ होता है वो उतना नहीं था कि ठीक है, आई टुक इट एज लाइक नॉलेज, इंफॉर्मेशन है तो आना चाहिए, आता है तो लाइक इट्स गुड, मतलब खुद को भी अच्छा लगता है वैसा। और फिर यहाँ पे आने के बाद एवरी टाइम आई हैव इंटरेक्टेड विथ यू, या फिर रूबी मैम जिस तरह से हम लोग को गाइड करते थे, मतलब शी वुड टॉक अबाउट इनर एनर्जी, वैसा स्टार्टिंग में मैं जब आया था, मतलब स्टार्टिंग जब ज्वाइन किया था तो वो बोल रही थी अंदर से खुद होता है, इनर एनर्जी आता है, तो उस लाइक मतलब उस समय तो बोल भी नहीं सकते, तो मेरे को थोड़ा सा लगा था होगा शायद कुछ पता चल जाएगा बाद में, कुछ जैसे कुंफू में भी रहता है एक अंदर का कुछ रहता है, मतलब वो भी एक कॉन्सेप्ट ही है, नोबडी हैज सीन इट, तो उससे मैं रिलेट करके चल रहा था इसमें भी कुछ रहेगा। बट थ्रू द प्रोसेस ऑफ टाइम आपके साथ जितना इंटरेक्शन हुआ, फिर नेहा मैम ने जितना पढ़ाया, तो सारा कुछ गैदर करके एक रियली ओपन अ न्यू डायमेंशन नॉलेज वाइज एक्चुअली चीजों में बिलीव करना, लाइक वेदर इट इज मिथोलॉजी हो या फिर जो हमारा सनातन धर्म को जो हम लोग जिस पे दिस होल योगा इज बेस्ड, ये सब जो इसमें एक अलग तरह का बिलीफ भी आया। आई वाज लाइक एन एथिस्ट टाइप, मतलब मैं उतना भगवान में विश्वास नहीं रखता हूँ, बट ये क्वेश्चन मैंने नेहा मैम से भी पूछा था, लाइक अगर कोई एथिस्ट है तो फिर वो योगी बन सकता है कि नहीं बन सकता है, अगर उसको भगवान में विश्वास नहीं है तो। नेहा मैम ने बताया था कि लाइक भगवान में विश्वास रखना इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट यू नीड टू पुट योर फेथ इनटू समथिंग, मतलब व्हाटएवर वर्क यू डू, इफ नॉट योगी देन बन जाओ कर्म योगी, एज सिंपल एज दैट। वो मतलब उन्होंने समझाया तो बहुत था, बट वो सिंपल सा चीज मैंने ग्रास्प करके रखा अपने पास, वैसा था। और फिर हर मतलब मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा है, मुझे लगता है मेरे लिए सबसे अच्छा बात ये था कि यहाँ इससे पहले मैंने कहीं पे योगा सीखा नहीं है, मैं स्पोर्ट्स में एक्टिव रहता था, रनिंग, प्लेइंग क्रिकेट या फिर बास्केटबॉल, ये सब, बैडमिंटन, टेनिस, ये इट वाज माय थिंग वैसा करना। रिसेंटली जिम भी ज्वाइन कर लिया था, वो बहुत साल तक मनन करने के बाद लास्ट ईयर लॉकडाउन में जिम भी ज्वाइन किया, I was more into those physical activity kind of thing। तो यहाँ पे आने के बाद उधर में तो एडवांटेज हुआ ही, साइड बाय साइड एक साइकिक लेवल पे भी बहुत सारा मतलब आई पर्सनली फील दैट। और कहीं इससे पहले योगा किया नहीं था, तो मेरा जो दिमाग था व्हेन आई केम इन, इट वाज कंप्लीटली वेकेंट, एकदम वो इट वाज लाइक अ ब्लैंक पेज, आप लोगों ने जो लिखा वो लिख चुका है, एंड दैट इज द थिंग दैट आई बिलीव इन। तो मेरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही है किसी भी नॉलेज को, किसी भी नॉलेज का असेसमेंट करने का, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ नॉलेज इन माय माइंड। तो अब और उसमें मैं बिलीव भी करता हूँ, तो अब ऐसा नहीं कि मैं कहीं और से जाकर के सीखूंगा, ऐसा वैसा नहीं है।
to me it is like I just hope कि ये जो 45 days जिस तरह का डिसिप्लिन मैनर में मैंने फॉलो किया है, I can follow the same discipline routine in the coming days, and it's not like in next इतने days के लिए, but for me it would be short term goals like एक week 2 week उस तरह से करके, but eventual plan is कि I just hope कि मेरा ये routine एकदम continue रहे। और ये difference मेरे को दिखता भी है, एग्जाम्स जब सारे खत्म हुए थे then there were 2-3 days जब skip हुआ था, ना प्राणायाम किया, शाम में अनुलोम विलोम नहीं किया, सुबह में आसन नहीं किए कोई, और उससे डायरेक्ट मेरा जो बॉडी लैंग्वेज है, मेरा जो एक माइंडसेट रहता है टुवर्ड्स द जो एक आउटलुक रहता है कि आज का दिन कैसा होने वाला है टाइप का, वो डायरेक्ट वो दिखता था मेरे को। फॉर इंस्टेंस परसों मैंने नहीं किया था और कल किया था, कल आई वाज फीलिंग वेरी पॉजिटिव, अपने आप बॉडी अपराइट स्ट्रेट हो गया, आई डिडंट डू एनीथिंग, आई जस्ट डिड पद्मासन एंड अनुलोम विलोम। इवन दैट छोटा सा, मतलब छोटा चीज तो वो नहीं है, बट the amount of time 15-20 minutes भी अगर मैं दे रहा हूँ, even if I'm not having time, तो that is giving me so much of benefit. तो I feel like कि मेरे को at least I know the key to get into myself now, मतलब मेरे को, और the first thing that I believe is कि like सबसे पहले खुद को जानना भी बहुत important है, otherwise हमारा जो भी assessment रहेगा, जो भी हम लोग देखते हैं आसपास में, वो उतना कभी क्लियर नहीं रहेगा। तो इसलिए सबसे पहले खुद को क्लियरली जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जो भी चीज मैंने सीखा है, दिस थिंग आई बिलीव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव लर्न, बिकॉज बाकी सब कुछ जो भी है दैट इज काइंड ऑफ दैट विल फॉल कॉम्प्लीमेंट्री ऑन द साइड ऑफ इट। तो बिकॉज आई बिलीव इन इनर एनर्जी टाइप का चीज है, तो आई होप कि उसको मैं टैप करके उसको फुली एक्सप्लॉइट कर पाऊँ। वो ऐसा एकदम डिसाइसिव गोल नहीं है, आई नो इट विल हैपन थ्रू अ प्रोसेस, और वो होगा, वो चाह करके करने से नहीं होगा, वो अपने आप ही होगा। तो जब होगा तब होगा, आई विल जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। सो दैट इज व्हाट आई इंटेंड टू डू, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन, मतलब रूबी मैम, देवती मैम, मनाली मैम, आई एम लाइक एक्चुअली मैं बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे से ऐसा आसन करवा लिया है कि I never thought that I would be able to do that. For instance, पश्चिमोत्तानासन भी जो है, मतलब at one point of time I thought कि शायद एग्जाम तक नहीं होगा, but I just need to give my best, और जो करते हैं उस तरह से करना है। But एग्जाम के पहले वो भी करवा दिया था उन्होंने, और वो मुझे पता नहीं, unlike and whatever they used to say, it was very मतलब वो डायरेक्ट could feel that, वैसा रहता था। अभी अगर आप आंख बंद करके हम लोग करते हैं, तो somewhere at the back of my mind उन लोग का आवाज इको करता ही है, क्योंकि वैसा ही रहता था। आंख बंद करो and we are doing breathing पे फोकस करना है, तो we feel like कि कहीं पे, at least I feel कि कहीं पे वो आवाज इको हो ही रहा है। और फिर suddenly एक दिन बंद हो गया 27th के बाद, and उसके बाद थोड़ा सा, मतलब even accepting that thing कि खत्म हो गया, अब हम लोग नहीं मिल रहे मैम से लाइक ऑन अ डेली बेसिस जैसे पहला चल रहा था, उसको एक्सेप्ट करने में मुझे थोड़ा सा लाइक, एंड देन टुडे, आज जब वापस से कॉल ज्वाइन किया, तो आई थॉट कि शायद सिर्फ नेहा मैम रहेगी और आप रह गए, बेस्ड ऑन दैट ये सारा रिजल्ट का अनाउंसमेंट होता रहेगा। बट सबसे पहले मैंने जैसे ही ज्वाइन किया, आई सॉ कि रूबी मैम एकदम कोरोना के बारे में बात कर रही थी, तो और फिर मैंने चेक किया बाकी सारी मैम भी है, आई वाज रियली हैप्पी कि लाइक चलो, मतलब फिर से देखने के लिए मिला, एंड लाइक आई एम लिसनिंग टू देयर वॉइसेस एंड ऑल। तो उससे मेरे को मतलब एक सडन इंस्टेंट हैप्पीनेस टाइप का जो रहता है, वैसा आई स्टार्टेड फीलिंग टुडे, एंड इवन लाइक आई एम आल्सो थैंकफुल टू यू सर, क्योंकि आपका जो whatever interactions I've had with you, I take it as कि मेरे पास कुछ भी सवाल रहेगा ना, so I can just put that question in front of you, I'll always have a logical explanation for that, और वो ऐसा नहीं कि कुछ भी इधर उधर से, वो आप जो बताते हैं I can relate to that, और वो सही रहता ही है, मतलब at least I have that gut feeling कि वो सही रहता है। gut feeling नहीं, मतलब एक अंदर से आता है, acceptance आता है, क्योंकि this is the answer I'm accepting, that is where the boundary lies, कि कोई भी जवाब दे रहा है तो either you will completely reject it या फिर you'll accept it, and if you accept it, तब you will think about it and you will implement it in your life, वैसा रहता है। तो वो एक चीज है जो I have seen, और बहुत ज्यादा frequently होने लगता है कभी-कभी, like I'll ask sometimes very stupid questions also, but that is fine, लेकिन मेरा जो doubt है वो clear हो जाता है। और अभी के बाद से ये भी चीज था कि मैं ये सोच रहा था, like आगे चल के अगर वैसा सवाल आता है तो फिर
आई वाज थिंकिंग तो मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, मेरा सोर्स किधर है फिर तो इट्स ऑन अ लाइटर नोट ऐसा बता रहा हूँ, बट वो मुझे काफी लाइक इट रियली टच्ड मी, गिव्स मी क्लैरिटी आल्सो। और फिर जेसल मैम और दीपाली मैम भी है, उन लोग के साथ हमारा उतना कुछ ये रहा नहीं है। जब भी हमने जॉइंट सेशंस किया तभी वी गॉट टू इंटरेक्ट विद देम। तो उनका भी लाइक overall the thing is like whatever faculty you have, the whole faculty, the way they teach things, I mean they are so calm and composed, and at the same time they are so humble, which is really difficult to believe. Like सबकी सब, the जेसल मैम, दीपाली मैम, देवती मैम, रूबी मैम, मनाली मैम, नेहा मैम, सब लोग मतलब इतना ह्यूमिलिटी आता कहाँ से है वो तो मेरे को समझ में नहीं आता था। बट विद प्रोसेस आई अंडरस्टूड कि लाइक इट इज जस्ट योगा दैट इज मेकिंग एवरीवन जस्ट लाइक दैट, मतलब which is also an indication कि सब लोग constant practice भी करते हैं। so ये मतलब ये सब बहुत सारा चीज है। लकीली लाइक हमारा जो टीम मतलब ये जो बैच भी था, लाइक सारे लोग बहुत हम्बल है। तो आई बिलीव कि लाइक कुछ भी हम लोग जो करते हैं, एक जो आउटसेट सेटअप हो जाता है, दैट इज मतलब जो एक टीम इन्वायरमेंट टाइप का रहता है, वो इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन द काइंड ऑफ पीपल वी आर डूइंग द होल योगा थिंग विद। वहां पे अगर कुछ भी एक अप डाउन टाइप का रहेगा तो फिर थोड़ा सा नेगेटिविटी आता है, तो इट काइंड ऑफ इफेक्ट्स एवरीथिंग, जैसा आप वो चेन रिएक्शन वाला बात बोल रहे थे। तो लकीली हमारा दोनों ही बैच अच्छा था, एंड ऑल ऑफ देम लाइक वे वेरी इंटरैक्टिव। तो देयर वुड बी क्वेश्चंस जो हम लोग नहीं पूछेंगे, लेकिन कोई ना कोई आकर के पूछ देगा। हम लोग में भी हेजिटेशन या फिर शर्म के मारे नहीं पूछेंगे, लेकिन देयर आर अदर पीपल हु विल गो अहेड एंड आस्क देम। तो कभी भी वैसा कुछ डाउट जमा नहीं रहा अपने पास कि ये सवाल का जवाब नहीं पता है या इसका जवाब नहीं पता। कहीं ना कहीं से सवाल आते रहे, सबका जवाब मिलता ही रहा। तो ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द टीचर्स, especially Ruby ma'am, Devati ma'am and Manali ma'am. I wish I could have written a note, मतलब लेटर लिख पाता, लेकिन वो मेरे दिमाग में ही चल रहा था। अगर मैं आज नहीं बोलता तो भी मैं लिखता ही। बट द थिंग इज कि डिले करना मेरा थोड़ा इनबिल्ट टाइप का नेचर है, which has also improved because of this yoga thing. उतना मैं पोस्टपोन नहीं करता हूँ चीजों को, but that was something that I would have done because I see changes in myself physically and mentally दोनों तरीके से, and it has come because of all you guys. So thank you is the least I can say or do, because ये तो ऐसे ही सब कुछ virtually चल रहा है, but I really wish कि एक बार if given the opportunity I'll like to meet all you guys and Sure. be like ये जो be thank you I could say that physically. Thank you very much आकाश जी। अच्छा, अभी दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मेरा कल डॉक्टर कलाबेन शाह से इंटरेक्शन हुआ था। एवरीडे कुछ ना कुछ बात होती रहती है। शी सजेस्टेड मी, शी इज वेरी बिजी, बट आप लोगों की कुछ अच्छा तकदीर लेके आए हो। बोलती है नेक्स्ट वीक में खाली 30 खाली ओनली 30 पार्टिसिपेंट इकट्ठा करो और 1 से 1.5 घंटे का इंटरेक्शन रखो। If you wish, she will come and she will quench all of your जो क्वेश्चन है उसका आंसर करेगी। तो उसके लिए बात करेंगे 30 के लिए खाली 30 पार्टिसिपेंट, ज्यादा नहीं। व्हाट शी टोल्ड मी उस हिसाब से जाना है। बाकी आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे हम। मैं आपको फिर से बोलता हूँ, बार बार बोला हूँ, आज भी वही बोल के जाता हूँ। शांत दिन है आपका, एक बात हमेशा याद रखना, इसके बगैर ये सीखा हुआ कुछ काम का नहीं। दूसरी सबसे बड़ी चीज इसकी ये है, डोंट थिंक कि मेरा ये आसन नहीं हो रहा है, यह आसन होगा तभी प्रैक्टिस करूंगा। इसमें प्रैक्टिस मीन्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में अगर आधा आसन होता है, फिर से बोलता हूँ, आपकी बॉडी के लिए वो सबसे सही है। ये सबसे बड़ी बात है कि किसी का पश्चिमोत्तानासन नहीं टच हो रहा है, डोंट थिंक
यू आर लूजिंग एवरीथिंग। आपके लिए जितना हो रहा है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। तीसरी बात है कि आपको थोड़ा सा मैं बात करके फिर ये करता हूँ, तो सोच आती होगी कि उस दिन अगले वाले जन्म में, मतलब आने वाले जन्म में कैसे ये हावी टॉपिक्स। देखिए, ईश्वर ने ऐसी संरचना की है कि जब योग साधना करता है और इनका आयुर्कर्म, मतलब आयुष्य खत्म हो जाता है, तो उसको दूसरे जन्म में ईश्वर ऐसे सरकमस्टेंसेस देता है, ऐसे सरकमस्टेंसेस देता है, इसने यही करे। ये गीता में प्रॉमिस किया है, अगर आप प्राण प्रबल हो गया, आपका प्राण प्रबल हो गया, नेक्स्ट बर्थ आपका शायद अफ्रीका में भी होगा ना, भी वहीं से ढूंढते ढूंढते लकुलिश में आओगे। सर्किट वाला मामला, साइंस वाला मामला है। चुंबक खींचता है, मैग्नेट खींचता है। देखिए, लकुलिश यूनिवर्सिटी के आजू बाजू में ही कितने फ्लैट्स है, इसमें से कोई नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि वो गलत है, लेकिन यही इसका जो तरीका है वो ये है। लेकिन फिर से मैं बोलता हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तीसरी चीज याद रखना, ऑलवेज रेफरेंस स्क्रिप्चर का लेना, व्यक्ति विशेष का रेफरेंस मत लो। व्हाट स्क्रिप्चर सेज। आप ये एक एटीट्यूड बना लो लाइफ में। और क्यों स्क्रिप्चर्स, मतलब मैं बोलूँ वो स्क्रिप्चर्स नहीं, ऑथेंटिक टेक्स्ट। और ऑथेंटिक जिसका ट्रांसलेशन हुआ, स्क्रिप्चर्स में काफी एडल्टरेशन हुए।